ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। उसके लिए हमें अपने एक्शंस और अपने थॉट्स को अपने गोल से मैच करना पड़ता है। जब हम उन सब चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में वट एवर वी वॉन्ट वी कैन अचीव। आपको ये विश्वास करना है कि क्यों नहीं हो सकता, मैं ये कर सकती हूँ। चाहे आपकी फैमिली हेरिडिटी है कि सभी मतलब ओबेसिटी है सबको, आपका डीएनए ही ऐसा, आपको ये सब नहीं सोचना। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ? फेल हाँ हुए हैं। रीज़न बीइंग कि उस चीज़ में मेरे को डाउट था। जैसे इंडिया का मैं एग्जांपल दूंगी। मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी। आई गॉट 2-3 ऑफ़र्स, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया, आई गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट 2-3 ऑफ़र्स, मुझे 2-3 ऑफ़र मिले। बट जिस कंपनी में मैं चाहती थी मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न बीइंग कि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। अगर ये मिल गई तो ये भी ठीक है, नहीं मिली तो। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲਾਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਵੰਦਨਾ ਗੁਗਲਾਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਰੋਹਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਵਟ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ, ਇਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਅਮੀਰ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ, ਹੈਲਥੀ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੰਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੰਦਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। वेलकम। गुड मॉर्निंग मिस्टर थिंड, एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल आर रेड एफएम लिसनर्स, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर, एंड आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਕਰਟ ਪੁਸਤਕ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੀਕਰਟ ਦੀ CD 'ਚ ਕੁਛ ਕਲਿੱਪਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ? मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं दोनों का ही बताती हूँ। ये जो हैं दो पावरफुल टूल्स हैं जो हमारे डिज़ायर्स और हमारे गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें अपने एक्शंस और अपने थॉट्स को अपने गोल से मैच करना पड़ता है। जब हम उन सब चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में वट एवर वी वॉन्ट वी कैन अचीव। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? I started this a decade ago.
10 साल पहले आई वुड से सदगुरु जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु है इंडिया में, ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। सो मैंने उनकी यूट्यूब्स पे वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो जो भी वो नोट्स जो भी वो बताते थे, आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, और मैंने उनके प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँगी। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है शुरू से ही। मतलब मुझे नई नई प्लेसेस पे जाना, खाना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन्स ट्राई करना, कल्चर देखना, चाहे बीचेस पे जाना या माउंटेन्स पे जाना। तो मैंने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया है। तो मेरा 2017 में मतलब 2016 में आई वॉज थिंकिंग कि 27 में मुझे इस साल तो 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स करने हैं। अच्छा। तो मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने उस पर वर्क भी किया। एंड यू नो, मेरा जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ वो भी आई वॉज इन न्यूजीलैंड। जब ईयर एंड हुआ आई वॉज इन दुबई। सो इन बिटवीन ऑल्सो आई ट्रैवल 3 more countries। सो पहला फोकस, फिर थॉट्स ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। सो पहले इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो? यू हैव टू फोकस ऑन 4 थिंग्स, FTBA। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। FTBA, F इज़ कॉल्ड फीलिंग्स, T इज़ थॉट्स, B इज़ बिलीव्स एंड नेक्स्ट इज़ एक्शन। फीलिंग्स। सो फीलिंग्स में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपको जो आपका फ्यूचर है आपको प्रेजेंट में फील करना है। यहाँ मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आपको वेट लॉस करना है, आप हो 80-90 केजीज़, आप चाहते हो कि आप एक गुड शेप में आ जाओ, आपको 50 केजीज़ वेट करना है। सबसे पहले आपको वो इमेजिन करना है कि यू हैव ऑलरेडी गेट बैक इन शेप। मतलब आपका 50 केजीज़ वेट रिड्यूस हो चुका है। आप फील करो, उस चीज़ को फील करो किस तरह दी लगूंगी या कि किस तरह उसके ਦਾ बाद लगाਂਗਾ। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं आज 80 की हूँ तो मैं 50 की हो जाऊँगी तो मैं कैसी लगूँगी। उसके बाद मैं एनर्जेटिक फील करूँगी, मेरा माइंड अच्छा होगा, मैं एक्टिव रहूँगी। उसके बाद आता है थॉट। दूसरा ये है कि थॉट मतलब फिर आपको उसके बारे में सोचना मतलब कि आप पूरे दिन में कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लो। मॉर्निंग में आप ले लो या रात को सोने से पहले। पर्सनली मैं रात को सोने से पहले करती हूँ, क्योंकि रात को जब आप अच्छे थॉट्स लेके अच्छे थॉट्स लेके सोते हो तो सुबह आप उसी माइंडसेट से उठते हो। तो आपको एफर्मेशंस करने हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको थिंक यानी थॉट जो है, जो एफर्मेशन आपको करना है वो आपको ये करना है, आई एम हेल्दी एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिलीव्स। बिलीव क्या करना है कि आपको ये विश्वास करना है कि क्यों नहीं हो सकता, मैं ये कर सकती हूँ। चाहे आपकी फैमिली हेरिडिटी है कि सभी मतलब ओबेसिटी है सबको, आपका DNA ही ऐसा, आपको ये सब नहीं सोचना। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आई कैन डू दिस, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हो सकता है। बिल्कुल। एंड एक्ट। उसके बाद आपने पहले फील कर लिया, थॉट हो गया, बिलीव कर लिया, एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली क्या होता है, लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, करते ही नहीं है। एक्शन में आपको क्या करना है, इसमें आपने सोच लिया तो आपको एक्सरसाइज करनी है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, आप हेल्दी खाना खाओगे, आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अचीव कर सकते हो। एक और ओके। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਣਾ। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਟੇजेस ਲੰਘ ਗਈਆਂ, हाँ जी। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਥਾਟ ਕਰਕੇ। ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ। हाँ जी। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, हाँ जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ओके। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल। आप कभी भी देखना, आपको तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत लोगों से मिले होंगे। जो पॉजिटिव बंदा होगा ना वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव बंदा होगा ना वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। हमारा माइंड है ना, ये हमारी बॉडी का सबसे डेंजरस पार्ट है। आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। लेकिन जब आप अच्छा सोचोगे ना और आप अच्छी चीज़ें फील करोगे, अच्छी चीज़ें लिखोगे तो आपके थॉट्स ही वैसे होने लग जाएंगे और उसके बाद आपको खुद अंदर से ही एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। एक्शन करवाने लग जाएंगे। एक्शन अपने आप ही होते हैं। पर हाँ इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस करना है, FTBA किया, आपका वेट लॉस हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वो लो हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है,
फिर वेट बढ़ जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आप जिम जा रहे हो, सो यू हैव टू बी हैप्पी। आप उस चीज़ को एक्साइटमेंट से करो, आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ weight loss ਦੀ ਤਾਂ। हाँ जी। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ हाँ जी। ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, हाँ जी। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ weight loss ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। हाँ जी। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। बिल्कुल हो सकती है। इसमें मैं आपको जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं मैं उनका एग्जांपल देती हूँ। जिम कैरी आपने सुना होगा। जी, जी। जी। उन्होंने 1995 में अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा था ऑन थैंक्स गिविंग डे, कि उनका बेसिकली उनका मैनिफेस्टेशन ये था कि मुझे $10 मिलियन चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ विजुअलाइज की अपनी लाइफ में कि मेरे पास मैंने $10 मिलियन कमा लिए। उसके लिए उन्होंने वैसे एफर्मेशंस लिखे और अपनी स्किल्स पे वर्क किया। यू नो, विद इन फ्यू ईयर ही गॉट अ रोल इन अ मूवी कॉल्ड डम एंड डम्बर, एंड उस मूवी से उन्होंने $10 मिलियन अर्न किए। सो ये मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं आपको रिलेशनशिप पे भी एक एग्जांपल बताती हूँ। आलिया भट्ट जो बहुत जी, ही जी, फेमस वो है, मशहूर है। तो उन्होंने कॉफ़ी विद करण शो में उनसे करण ने पूछा था कि शादी के बारे में कि आप अपना कैसा पार्टनर चाहती हो एंड ऑल, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। तो आलिया भट्ट ने बोला था कि रणबीर कपूर इज़ माई क्रश, ऑल्दो ही इज़ डेटिंग कैटरीना कैफ। उस टाइम वो कैटरीना कैफ को डेट कर रहा था। बट मेरा ड्रीम है कि मैं कपूर्स की मतलब फैमिली में ही मेरी शादी हो और मैं रणबीर कपूर को मेरा क्रश और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। ऑल्दो दे हैव अ वेरी big age difference, but today you have seen she is married with Ranveer Kapoor. ਸੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? एफर्मेशन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। सबसे पहले जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पहले सोचते हैं, बाद में फील करते हैं। थॉट है आपको, आपके पास पैसा कमाना है, आप फॉर एग्जांपल आपका थॉट है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन फील तो आपकी ये आ रही है कि मैं कैसे कमाऊंगा, तो कभी नहीं हो सकता। तो एफर्मेशन क्या रोल प्ले करते हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला FTBA में सबसे पहले आपको फील करना है, आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है। फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। यस, पहले सबसे पहले आपने फील कर लिया, उसके बाद उस फीलिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है, और जो भी आपका थॉट है आप उसको लिखो, आप उसको बोलो। आप कोई भी दिन में टाइम डिसाइड कर लो। यू हैव टू राइट एक 369 का एक एंजल नंबर भी आप बोल सकते हो इसको, तो 3 बार लिखो, 6 बार लिखो या 9 बार लिखो। या एक पूरे दिन में टाइम होता है 11-11, जब आप सुबह 11:11 होते हैं या शाम को रात को 11:11 होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एंजल नंबर, जो आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जीज है, फ्रिक्वेंसी हैं। आप जैसी एनर्जी दोगे आपको वैसी ही वापस मिलेगी। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, आप उस टाइम पे अपने थॉट लिखो। अगर मैं भी कोई चीज़ डेली लिख रही हूँ तो मेरे माइंड में वो रहती है, मुझे वो चीज़ याद रहती है। तो इसीलिए आपको एफर्मेशन लिखने चाहिए या बोलने चाहिए। तो ये रोल प्ले करते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। एक्चुअली हम हैं या कोई भी चीज़ है, हर चीज़ में एनर्जी है और फ्रिक्वेंसी है। बिना एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ एक राइट फ्रिक्वेंसी मैच करने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे आपसे बात करनी है, अगर मैं कोई और नंबर डायल करूँगी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे आपका राइट नंबर ही डायल करना पड़ेगा। सेम थिंग विद यूनिवर्स, आपको अपना FTBA और अपना गोल अलाइन करने हैं और उसको यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच करना है कि जो आप सोच रहे हो, और वो चीज़ होती है। और ये यूनिवर्सल मतलब ये ट्रुथ है कि वॉट एवर यू अट्रैक्ट यू गेट बैक इन योर लाइफ। यूजली जैसे हम कर्मा में भी बोलते हैं ना कि आप जैसा करोगे आपके साथ वो वापस आएगा, क्योंकि एनर्जी है। आप जैसी एनर्जी दूसरों को दोगे वैसी ही वापस आएगी। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ? फेल हाँ हुए हैं। रीज़न बीइंग कि उस चीज़ में मेरे को डाउट था। जैसे इंडिया का मैं एग्जांपल दूंगी, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी
आई गॉट 2-3 ऑफर्स, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया, आई गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट 2-3 ऑफर्स, मुझे 2-3 ऑफर मिले, बट जिस कंपनी में मैं चाहती थी मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न बीइंग कि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, अगर ये मिल गई तो ये भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। तो मैं फोकस नहीं सी ठीक। फोकस नहीं था सॉरी। आप अगर कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो डेस्परेट नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, मैं बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू बाय अ पेंट हाउस, आई हैव अ पेंट हाउस, आई वॉन्ट टू बाय अ पेंट हाउस इफ़ आई से मेरे अंदर डेस्परेशन है। मैं अगर डेस्परेट रहूँगी तो मैं डेस्परेशन ही क्रिएट करूँगी, मैं डेस्परेट ही होती रहूँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर मैंने ये फीलिंग ही क्रिएट कर ली कि आई हैव अ पेंट हाउस, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो मैं उस पर काम करूँगी। डेस्परेशन से यू विल गेट सक्सेस, मतलब दोनों केस से मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा, क्योंकि उसमें आपका माइंड स्टेबल नहीं होता, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा भी मैं अपनी लाइफ के आपको पर्सनल एग्जांपल्स बताती हूँ। आई जॉइंड अ कंपनी एज एन असिस्टेंट मैनेजर HR एंड एडमिन। सो विद इन अ ईयर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आई हैव स्किल्स, बट मुझे था कि मैंने मास्टर्स की है, अभी 2 साल हो गए हैं इस लेवल पे, मुझे सीनियर मैनेजर का प्रमोशन चाहिए अब। विद इन 1 ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल, आई जॉइंड प्रेजेंटेशन स्किल्स कोर्स, मैंने वो अपने बॉस को दिखाया, एंड यू नो आई वॉज द ओनली वन हु गॉट प्रमोटेड एज अ सीनियर ਤੁਸੀਂ मैनेजर। ਉਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। मैनिफेस्टेशन कर रही थी, साथ साथ अपने एफर्मेशंस लिख रही थी, मुझे विश्वास था, आई वॉज फुली कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बट मैंने उसके साथ साथ एक्शन भी किया, मैंने अपनी स्किल्स पे और ज़्यादा वर्क किया, और मैंने अपने जो भी मैं काम करती थी, जो मेरे बॉस जो भी बोलते थे, तो मैंने उस पर पूरा वर्क किया। ਇਹ एंड ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਐਫर्ट ਆ। एफर्ट है, किस्मत तो है ही, पर एफर्ट्स भी है ना। कई बार हम कहते हैं कि कई बार हम बोलते हैं जो हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा, किस्मत खुद चल के तो नहीं आएगी ना, हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ਪਰ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ साइंटिफिक लॉ। एक मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ। 2 तरीके के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं अपना चलो एक एग्जांपल लूँ। मैं अगर बोलती हूँ कि आज मैं अपनी जॉब में खुश नहीं हूँ, मुझे जॉब चेंज करनी है, मेरे कोलीग ऐसे है, मेरा बॉस ऐसा है, मतलब कोई मुझे इस चीज़ में नेगेटिव ना ले, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। बट क्या गारंटी है मैं जॉब चेंज कर लूँगी तो मुझे वहाँ पे भी अच्छा बॉस मिलेगा और अच्छे कोलीग्स मिलेंगे। इट्स बेटर आई शुड वर्क ऑन माई फ्रिक्वेंसी, कि मैं जो मेरे अंदर जो मेरे कंपनी की मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मैं अगर उस पर काम करूँगी तो मुझे जॉब चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਪਾਲੋਗੇ। बिल्कुल, मैं विश्वास करती हूँ, पर उसके साथ साथ जो और स्टेप्स हैं मैं वो भी फॉलो करती हूँ। या उस स्टेप तो फॉलो करने ही करने। डेफिनेटली। वंदना जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन, एंड इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मिस्टर थिंग। थैंक यू।